morning all of you. So yesterday's homework questions were number 6 and number 10. Number 6, you were asked to find out some pinpoint answers. Questions to the pinpoint. Material purchased during October. Check your answer. Material purchased during October. Have you got this amount? Cost of goods completed. कितना है? 1,86,000. Overheads applied to production in the month of October is 42,300. Balance in WIP on 31st October is material consumed is balance of stores control account is and under absorption is. Check करो. Have you got these answers? चलें आगे. Next homework question was number 10, which was resemblant to number 8, what we did. Question number 10, profit as per financial P&L is 2,32,000. Check all of you. Profit as per costing P&L is 365,357. And then you have reconciliation between these two profits. Are you able to do reconciliation? Why? Okay, no problem. चलो आगे बढ़े. कॉस्ट शीट का प्रॉफिट 365,357 आया. 365,357 2,32,000. चले आगे. आ गया? बघितलंच नाही. संयुक्ता कुठे? इनकम टॅक्स रेड. ओके ओके. Come to number 12. Question number 12. Messrs Selwell Limited has furnished you the following information from the financial books. So they have given you P&L account for the year ended 31st December 2018. They have already given this P&L account to you. Are you understanding? मतलब वापस बनाने की जरूरत नहीं है. P&L account में आप देखोगे आपके पास क्वांटिटीज भी दी है और क्वांटिटी जरूरी है. हमें याद है कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमें चाहिए क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. जरा एक बार नजर डालते हैं. ओपनिंग स्टॉक है 500. चेक ऑन योर कैलकुलेटर. और क्लोजिंग स्टॉक है सेल्स है 10 to 50, क्लोजिंग स्टॉक है 250. तो कैन आई से 10250 प्लस 250 माइनस 500. क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज 10,000. हैव यू गॉट दिस फिगर? क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज 10,000. नाउ You have been given this financial P&L account जो last दो questions में हमने बनाया था. My dear friends, this is not only the last topic, but this is the second last lecture of cost and management accounting. So अब इसके बाद जो questions है वो dependent है उसी पे जो हमने अभी तक देखा है. तो question 8 और 10 जो हमने देखा था यहाँ पे based on the data we prepared financial P&L, we prepared cost sheet and then we prepared reconciliation. But let's see what the new question shows us. So they have already given us the financial P&L
the data is given, the cost sheet shows, I mean this paragraph, these 4 lines are going to give us the details which is going to help us to prepare what? Cost sheet. And then you are required to prepare the cost sheet showing the number of units produced and the cost of production by elements of cost per units and in total. This is something very important. You have to prepare cost sheet in 2 types, 2 manner. One is showing the cost per unit as well as the total cost. तो दोनों columns हमें यहाँ बनाने होंगे cost sheet में. And a statement showing reconciliation of profit or loss as shown by cost accounts with the profit by financial account. तो अभी तक हम 3 चीजें बना रहे थे, अब हमें 2 ही चीजें बनाना है. करेक्ट? करें स्टार्ट? फैंटास्टिक. So come to your registers, write down question number 12 oblique AAA. Oblique page number. और एक बार कॉस्ट शीट आप बना लीजिए आपके पास. So cost sheet will have 2 columns, per unit and the total column. You got something, Dirga? What am I asking and what is she saying? You got something from your secret friend. Her secret friend has given her costumes, you see. What a fantastic secret friend. कल मेरा WhatsApp स्टेटस देख के मैडम मुझे मैसेज करते हैं, सर यू हैव गिवन अस मेमोरीज, तो हम बड़े होके याद करेंगे. मैंने इसको रिप्लाई किया, और कितने बड़े हो गए, ऑलरेडी इतने बड़े हो गए. हाँ, शिवानी भी कह रही, मैं भी यही सोच रही थी, सही बात है, बड़े होके याद करेंगे. वो मैं nothing. You do one thing, you kill him on Revelation Day. You got it. फ्रूटी मिली आपको सीक्रेट फ्रेंड्स. त्यांनी डोक्यावर ठेवलं असेल ना स्वतःचे. सिक्रेट फ्रेंडनी स्वतःचे डोक्यावर ठेवलं असेल फ्रूटी. सबसे बेस्ट गिफ्ट पता आज मुक्ता को मिला है. मुक्ता को मिला है जेलुसिल सैरेडॉन पुदीनरा. और मुक्ता को पता भी चल गया उसका सीक्रेट फ्रेंड कौन है, क्योंकि मैंने उसे बताया है. ती नेहमी म्हणते ना जीव दे, म्हणून त्यांनी सगळे असे उपकरण दिले की जीव जाणारच नाही. आई मीन मुक्ता को वो ऑक्सीजन सिलेंडर भी दे सकते थे. सो मुक्ता से ज्यादा उसका सीक्रेट फ्रेंड मुझे कोस रहा होगा अभी कि मेरे अच्छे अच्छे गिफ्ट का सर क्या बना रहे हैं. हाँ, आपको तो खजूर देना चाहिए आपके सीक्रेट फ्रेंड में. बस दे दो बेचारी को, कोई कुछ नहीं दे रहा उसको. उसने कल क्या किया, शी सो स्मार्ट, खुद को गिफ्ट दिया
उसका फोटो लिया और ग्रुप पे डालती है माय सीक्रेट फ्रेंड, कुछ भी लिख दिया। मतलब कैसे लोग होते हैं, मतलब बताओ, खुद को गिफ्ट देता है। इट्स लाइक होली कोई नहीं खेल रहा है तो नल के नीचे बैठ गया मैं होली खेल रहा हूं, दैट टाइप ऑफ थिंग। It is only and only one, Arshia. It can only be and only one. अच्छा वैभवी, कल आपने वो केतकी का फोटो भेजा क्या आगे? नहीं, बट आगे भेजा क्या टू द कंसर्न्ड पार्टी? हाँ मुझे पता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, डायरेक्ट पूछ रही है सर, आपको पता है ना? हाँ चले आगे, बन गया फॉर्मेट। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड हमने कैलकुलेट की है। क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड कैसे आएगी? क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्वांटिटी ऑफ opening stock that came to 10,000 units. Now look at the data which is given over here at the bottom. The cost of material is rupees 14 per unit. So direct material consumed is rupees 14 per unit. So what will be the total cost of raw material consumed? 10,000 units into 14 rupees. That becomes 1,40,000. 1,40,000 आया अर्शी आपका ये आंसर? वेरी गुड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 7.5 पर यूनिट. सो लेबर कॉस्ट 7.5 per unit multiplied by 10,000 units. Have you got 75,000? Okay. The factory overheads are absorbed at the rate of 60% of the labor cost. Direct expense करते हैं dash. We calculate the prime cost. Factory overheads are 60% of labor cost. तो labor cost का 60% होगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स, और अब आप इसका टोटल लोगे तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट. You will get which cost? Factory cost. We are doing question number 12. नहीं वो लेट आया ना इसलिए. अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP. चेक कीजिए आपके पास कुछ है क्या ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP? नो. ओपनिंग स्टॉक है पर किस चीज का है? फिनिश्ड गुड्स का है. तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 0, क्लोजिंग स्टॉक इज 0. एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. चेक कीजिए डेटा क्या कहता है. डेटा द एडमिन ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड एट 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. सो वी नो दिस फैक्ट्री कॉस्ट, इसका 20% जो होगा दैट विल बी एडमिन ओवरहेड्स. और फिर हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. हैव यू गॉट ऑल ऑफ यू? अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. चेक कीजिए कितना है फिनिश्ड गुड्स? 500 यूनिट्स, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैल्यूएशन हुआ है 17.5 पे. नीचे देखिए क्या दिया है आपको क्वेश्चन में. दी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इज वैल्यूड एट 22.5 पर यूनिट. सो कम टू ओपनिंग स्टॉक, राइट डाउन 500 units into 22.50, और पर यूनिट होगा 22.5.
क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा किस प्राइस पे होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होता है। चलो लेते हैं कैलकुलेटर पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,12,000, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,12,000 डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 10,000 मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। चेक करो क्वेश्चन में दिया है 250 यूनिट्स, कितना आ रहा है? 7,800, दैट इज द टोटल। इंडिविजुअल यूनिट वाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज 31.2, करेक्ट? Selling and distribution overheads are always incurred on quantity sold. चेक करो क्या दिया है क्वेश्चन में, दिया ₹3 per unit. Selling expenses are ₹3 per unit. 3 per unit is of what? Quantity sold, which is 10250. पर यूनिट में आएगा 3. करेक्ट? और फिर आपको दिया है सेल्स। चेक कीजिए क्वेश्चन में आपको दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज ऑल्सो गिवन टू यू, you have to calculate selling price per unit. So total sale is 3,58,750 divided by number of units sold, that is 10250. Is it coming to 35 rupees? Check all of you. And the balancing figure is profit. So my dear friends, per unit profit comes to 9.5. The total profit comes to 12550. आया? What was the profit under financial accounting? Check your question. It is 24,000 and here it is 12,550. तो अब हमें फिर से बनाना होगा इसका रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इज 12550. What we discussed in the last lecture कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं उसको बेस लेना होगा हमें, करेक्ट? और टिक मार्क करने से बहुत यूज होगा, हेल्पफुल होगा। सबसे पहले लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। टोटल चेक करना है हमें। टोटल मटेरियल कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट वी डेबिटेड इज हाउ मच? 1,40,000. कम टू योर P&L अकाउंट, चेक करो व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट? 1,30,000. कैन आई से कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल कॉस्ट 10,000 ज्यादा हुई है? एक मिनट रुकना आगे बढ़ने से पहले। कैन आई से गाइस के एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का इनवर्स रिलेशनशिप होता है एंड इनकम और प्रॉफिट का कैसा रिलेशनशिप होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। समझ में आया? So in my cost accounting expense increased by 10,000, therefore profit decreased. तो अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 10,000. चेक कीजिए लेबर कॉस्ट 75,000 and check over here. Here it is also 75,000. Anything needs to be done? No. Very good. Next, check करो क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स 45,000 और वहां पे कितने हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स? 47375. कहना इसे हमारे यहां कम है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। कितने कम है? 2375. हमारे यहां एक्सपेंस कम दिख रहा है कॉस्टिंग में, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। अब प्रॉफिट को कम करना होगा, वेरी गुड, माइनस करना होगा
375. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं है. एडमिन ओवरहेड्स एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग इज 52,000. What are the admin overheads over here? 53,000. Again can I say there is under absorption of 1,000? From 1,000 क्या करेंगे? लेस करेंगे. सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, चेक कीजिए. अब नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. यहां 11250. व्हाट इज वैल्यू ओवर हियर? 8750. कैन आई से 3000? नो, 11250 माइनस 8750, 2500 से कॉस्टिंग में ज्यादा है. ओपनिंग स्टॉक इज लाइक एन एक्सपेंस. एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट कम दिख रहा है. अब प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, 2500 ऐड करना होगा. Overvaluation of overstock of opening stock of finished goods. Correct? चलें आगे. Look at the value of closing stock. What is the position? Here it is 7,800 and there it is 6,250. वहां पे overvaluation हुआ है कितना? 7,800 minus 6,250. Is it 1,550? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा, मतलब कॉस्टिंग में प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है. अब वो प्रॉफिट को कम करना होगा बाय 1550. चले आगे. और फिर क्या बचा है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज 30750. इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज 27500. वहां ज्यादा हुआ है, 30750 माइनस 27500, 3250 एक्सेस हुआ है तो प्रॉफिट कम होगा. अब प्रॉफिट बढ़ा देंगे कितने से? 3250. This is over absorption of selling and distribution overheads. What happened? क्या हुआ? हाँ, इनसेन. कल शगुन चौक रात्रि चालू होता का. आप अगर देखेंगे कॉस्ट शीट आपकी पूरी हो गई है. करेक्ट. अब हमें अनटिक्ड आइटम्स लेने हैं. कहां के? फाइनेंशियल P&L के. देखिए वहां पे अनटिक्ड क्या क्या है. सो बैड डेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये दोनों कॉस्टिंग में प्रोवाइड नहीं किए. इन दोनों को करते हैं माइनस. 2000 एंड 2500. इनकम्स, दो इनकम्स हैं जो कॉस्टिंग में कंसिडर नहीं हुई है. इंटरेस्ट एंड रेंट रिसीव्ड. उससे करना होगा एड 125 एंड 5000. इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड.
अब इसका लेते हैं टोटल, और अगर होगा सब कुछ सही तो इसे होना होगा टैली, और हो रहा है ये टैली टैली। Yes, Vedant, you're so intelligent. Absolutely correct. You're looking very excited for today's party. No? We'll have a wonderful time. चले आगे, इजी है, समझ में आया? चलो क्रॉस रेफरेंसिंग दीजिए यहां पे। Write down the page number of your register where you're solving this question. Will you solve number 13? Yes, do it. How much time? 10 minutes?
What is the profit as per costing P&L? चेक करो. How many of you got this correct, profit correct? Because if profit is wrong, there's no point in preparing reconciliation. But what was worth getting wrong? I mean, I'm not getting quite went wrong. Factory cost, is it 2,10,965? Factory cost 2,10,965. अगर हाँ तो उसके बाद कुछ गलत हुआ है, अगर ना तो उसके पहले ही गलत हुआ है. प्राइम कॉस्ट 215,800. करेक्ट. फैक्ट्री कॉस्ट इज 258,960. ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कुछ नहीं है, माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP और फिर मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 210,965. एड एडमिन ओवरहेड्स, यू विल गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 247,565. ओपनिंग स्टॉक यहाँ कुछ है ही नहीं फिनिश गुड का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड. इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4058. यू गेट COGS 243,507. Add selling and distribution overheads 48,000. You get 291,507. You compare it with sales 4,80,000. You get the figure of profit 188,493. Check all of you. काम मिस्टेक किया मैडम, पूरा गलत हो गया. करेक्ट. चले आगे. ओके. हुआ विभू. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG 4058. विभू केपी, यू गॉट आंसर्स. आया प्रॉफिट. कम टू क्वेश्चन नंबर 14, 1414. चलो क्विकली करते हैं ताकि आज आपको होमवर्क करने के बहुत मौके मिले. हाँ मिलेंगे होमवर्क, डोंट वरी. क्वेश्चन 14. Given below is the trading and P&L account of a company for the year ending 31st March 2009. I can see here, you can also see here that there is no opening stock, but the sales quantity is 60,000 units and the closing stock quantity is 2,000. So can I say production would have been 62,000 units? Check all of you. Now 62,000 प्रोडक्शन किया है और आपको प्रॉफिट दिया है एज पर फाइनेंशियल P&L 3,25,600. नीचे दिए कुछ डिटेल्स. हमें बनाना है कॉस्टिंग P&L अकाउंट, मतलब कॉस्ट शीट, और फिर हमें करना है उसको रिकंसिल विद द फाइनेंशियल P&L. करेक्ट. लेट अस स्टार्ट, लेट अस डू टुगेदर, लेट्स बी क्विक. सो क्वेश्चन नंबर 14, कॉस्ट शीट. रेडी ऑल ऑफ यू? करें स्टार्ट. हो गई कॉस्ट शीट सबकी, बन गई. ठीक है सर. होमवर्क में आप बेशक ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि आज होमवर्क होंगे 6 क्वेश्चन. तो हाँ कॉस्टिंग को, हाँ अकाउंटिंग को ना. विल टॉक लेटर. आई एम जोकिंग.
क्या है? ये सबको ट्रेनिंग वेदांती देता है। किसका? और लोगों को क्यों? बट हर्षिया ने जो नाम दिए थे वो तो मिक्स नहीं हुए वेदांत के साथ। अब ये बेस सेलिब्रेशन तो वेदांत के अकाउंट हैं। पर कैन यू ऑल बिलीव, मुझे तो अभी बिलीव नहीं हो रहा ये बंदा शाम की पार्टी के लिए अभी तैयार होके बोरिया बिस्तर लेके आ गया तो ये इसे पार्टी पे जाऊंगा। वेदांत बेकार में घर जाना, घर से निकाला है आपको? वेर यू स्टे? सर सियागढ़ रोड से वही तो रास्ता है। हो गई यार, कमाल है। नहीं, हकीकत की बात यह है, आईनी काढला असेल घरातनं बाहेर। हाँ, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द गेम। हाँ, सीट मैंने बनाई थी, उसने खुद ने निकाली। हो गई कौशिक? चलो स्टार्ट करते हैं। So quantity produces 62,000 units. Let's consider the data which is given over here. कैसे करना चाहिए? सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, यहां नीचे कुछ अलग से दिया नहीं है मटेरियल के बारे में। नीचे दिया है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या होगा? मटेरियल एंड वेजेस विल बी सेम एज इट्स गिवन इन द फाइनेंशियल P&L. So 27,40,000 and 15,10,000. Prime cost. फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री एक्सपेंसेस नीचे दिया है, दे आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन एट 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट। हमारी प्राइम कॉस्ट आई है 42,50,000, इसका 20%। करेक्ट? ऑल ऑफ यू, आर यू देयर विद मी? ओके, ओपनिंग WIP नहीं है बट क्लोजिंग WIP है। चेक कीजिए, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्लोजिंग WIP? 1,20,000. So you get the factory cost of goods produced. Add admin overheads, they are 6 rupees per unit produced and units produced are 62,000. So 62,000 into 6 rupees to get the cost of production. Cost of production में opening FG है ही नहीं यहाँ पे, closing FG, closing stock of finished good is always valued at cost of production. So take on your calculators, 53,52,000 divided by total quantity produced is 62,000 units multiplied by 2,000 units.
Have you got 17264? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जो कि दिया है ₹8 पर यूनिट सोल्ड, और यूनिट सोल्ड आर 60,000. You get cost of sales, and then last is the figure of sales, which is already given in the question. How much is the amount of sales? 60 lakhs. और बैलेंस फिगर होगा प्रॉफिट 3,40,645. 3,40,645. चलें आगे. अब हमें दोनों प्रॉफिट्स पता है, हमें बनाना है रिकंसिलिएशन स्टेट. लेट्स क्विकली प्रिपेयर इट. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. चलो लेट्स सी. मटेरियल लेबर में कोई वेरिएशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो ही कॉस्ट एज इट इज हमने ली है. फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड आर 850 एंड they are 830. Can I say there is over absorption? So profit will over absorption मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, तो हम प्रॉफिट को अब बढ़ाएंगे कितने से? 20,000. ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स. चले आगे. ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू हमने सेम ली है, ट्रेडिंग अकाउंट से ली है. एडमिन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड आर 372 और वहां गया है 382 400. कैन आई से अंडर एब्जॉर्प्शन? अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा. कितने से? 3,82,400 माइनस 372 इज 10,400. There's no difference in opening stock because है ही नहीं, but there is difference in closing stock of finished goods. Closing stock of finished goods चेक करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से कितना है? 1,60,000 और हमारे यहाँ है 1,72,000. क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, तो प्रॉफिट को कम करना होगा कितने से? 12,645. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड आर 480 और वहां दिया है 450. ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो ऐड करना होगा 30,000. I hope everyone got control on these type of questions now. Correct? Clear? Topic is easy. I think nothing is left in cost sheet. Let's come to financial P&L and let's see what is left over here. So there's one expense what we have not considered, and that is preliminary expenses written off 60,000. इसको अभी हमें करना होगा माइनस, और यहाँ एक डिविडेंड की इनकम है उसको हमें करना होगा ऐड.
चलें आगे। देखो मैं बहुत ज्यादा ना होमवर्क पे बिलीव नहीं करता हूँ, फटाफट नंबर 15 करो सॉल्व। मैं आप पहले से देख रहा हूँ, मैं बिल्कुल होमवर्क पे बिलीव नहीं करता हूँ। ये होमवर्क होता क्या है? ये सब मोह माया। क्या क्या सुना ही नहीं दे रहा क्या? हाँ दिख नहीं रहा है, आज बहुत गर्मी है। चलो क्विकली करो नंबर
Done all of you? क्या है आंसर्स? What is the costing profit? 39231. Check all of it, right? Is it getting reconciled? Yes. चलो क्विकली इंडेक्स में जाओ, पहले क्वेश्चंस को वहां पोस्ट करो. Go to your index, post these questions to your index. We did number 12, 13, 14 and 15. 12, 13, 14 and 15. Twelve, 13, 14 and 15. Your homework questions are 11 and 17. Your homework questions are 11 and 17. Now listen, 17 is hardly 5 to 7 minutes. In 17 you have to just prepare the reconciliation statement, that's all. You have been given both the profits, costing profit as well as financial profit. You have been given the various adjustments, what happens like under absorption, over absorption, bad debt, depreciation, goodwill written off, all those adjustments. All you need to do is just decide what is being added, what is to be subtracted, and accordingly prepare that reconciliation statement. That's all for question number 17. और आपको वहीं पता चल जाएगा सोल्यूशन सही है या नहीं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दिया है, पता है. क्वेश्चन नंबर 11 एक बार अगर आप देखेंगे तो अच्छा होगा. क्वेश्चन नंबर 11 में आपको ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है. इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके आपको असरटेन करना है फाइनेंशियल प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड यू हैव टू रिकंसिल देम. समझ में आ रहा है? सो बट द डेटा इज वेरी लेस, so it won't take much of the time. Maybe if you sit in one sitting 20-25 minutes your homework will get over. समझ में आया? My dear friends, मैं आपको एक अगर दिखा सकूं तो ये डिटेल एनालिसिस हम बाद में करेंगे, बट अभी मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखा रहा हूं ICAI का नवंबर 2018 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर. नवंबर 2018 एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर. This was the second exam under the new syllabus. Let me tell you, new syllabus, even though it was launched in 2017, but still it is not yet stabilized. और उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि मैंने आपको बताया था कि अभी इंस्टीट्यूट ने सीए फाउंडेशन के अंदर कुछ रीस्ट्रक्चरिंग किया है. रीस्ट्रक्चरिंग सिर्फ अकाउंट्स में नहीं हुआ है, अकाउंट्स में सबसे मेजर हुआ है, बट रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमिक्स में भी हुआ है, रीस्ट्रक्चरिंग मैथमेटिक्स में भी हुआ है. So we can't rule out the possibility that there won't be any restructuring in intermediate as well. That's why I'm saying these systems are yet to be stabilized. So my dear friends, all we can do is just study, prepare whatever we are doing. हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं नवंबर 2018 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर. क्योंकि अब आपको सारे चैप्टर्स के नाम पता है, तो यू आर इन पोजिशन टू आइडेंटिफाई देम. करेक्ट? वैसे आपके बुक्स में एनालिटिक्स में एट द बिगिनिंग मैंने आपको सब एनालिसिस दिया, बट स्टिल यू सी पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल. दिस इज ऑफ विच टॉपिक? मटीरियल कॉस्ट. अब आप देखो बेसिक फॉर्मूलाज है. क्वेश्चन नंबर 1 वैसे मैंने कहा था सबसे डेंजर क्वेश्चन होता है, और उसमें इतना इजी क्वेश्चन आया. इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम पे फॉर्मूला क्लिक होना चाहिए. नहीं तो इसमें एक्चुअली पुट दी वैल्यूज एंड गेट दी आंसर्स.
ये वाली पोजीशन। क्वेश्चन 1B, यू आर गिवन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल पिन पॉइंट 4 वेरिएंसेस दिए हैं। आपको पता है इसमें से एक तो बहुत आसान है, बच्चा भी कर लेगा। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस एक्चुअल फिक्स्ड। मतलब आप मुझे बताओ, ऐसा नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं लास्ट लेक्चर हम बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। आप अभी होमवर्क कीजिए, बाकी क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में करेंगे। लेकिन लास्ट लेक्चर आपके साथ वर्चुअल स्टूडेंट्स के साथ विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशन। मैं आपसे सुनना चाहता हूं और आप एज इट इज मेरी सुन ही रहे हैं। सो we'll be just exchanging our views that how was the batch, what is your perception after the batch got over. You can see standard costing. Question 1C कौन से टॉपिक पे लग रहा है? प्रोसेस कॉस्टिंग। याद करो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ वो 2 स्टेप्स पे भी क्वेश्चन आता है। ये देखो, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, खत्म, दैट्स ऑल। एंड यू हैव टू प्रिपेयर अंडर FIFO मेथड। मतलब कोई प्रोसेस अकाउंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये 2 स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 आपको करना है। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स माय डियर फ्रेंड। यू सी इट्स नॉट लेस एट ऑल। एंड 1D क्वेश्चन नंबर 1D चेक करो, इट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, करेक्ट। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कैलकुलेट द नोशनल प्रॉफिट और लॉस, दैट्स ऑल। आप मुझे बताओ, हम क्वेश्चन 1 को सबसे डिफिकल्ट मानते हैं, डू यू एग्री? डिफिकल्ट नहीं, मैं कहूंगा ट्रिकी। पर ट्रिकी होने के बाद भी ये क्वेश्चन 1 है नवंबर 18 का। नाउ यू सी 100% नहीं, 50% तो रिकॉल आ रहा है, माइंड में रिकॉल हो रहा है जो भी हमने पढ़ा है। 50% तो रिकॉल हो रहा है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिकॉल हो रहा है। जब मैं प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं, वो रिकॉल। लास्ट लेक्चर हम यही करने वाले हैं। मैं आपको यहां से जाने से पहले, कॉस्टिंग में से जाने से पहले, मैं आपको यहां चैलेंज से प्रूव करके दूंगा कि आप 100% ब्लैंक नहीं। शायद आप अभी डर रहे हो या जैसे भी डर रहे हो, मैं आपको अभी ब्लैंक पेपर पे साइन करके देने के लिए तैयार हूं कि जब आप पढ़ने बैठोगे ना, आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इस सब्जेक्ट से होगे। एंड you'll remember me that time. I don't know, but at least that time. Question number 2A, it's a 10 mark question. You can see in this question you have to prepare product cost sheet. देखिए आप, अभी हम पिछले 2 दिनों से कॉस्ट शीट ही खेल रहे हैं। और अगर अभी ये क्वेश्चन करें, देखो बिल्कुल आसान है। डायरेक्ट वेजेस बीइंग 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, हैवंट वी सीन सेम एडजस्टमेंट? सेम एडजस्टमेंट हमने देखा है। और ये बुक एग्जाम से पहले बन चुकी थी। लेट मी टेल यू, मैं आपको एक ही चीज कह रहा हूं यार, क्वेश्चन होता क्या है? इट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ सम नेम्स, सम फिगर्स एंड सम कंसेप्ट, खत्म। इसमें से पता है नेम्स अनलिमिटेड, फिगर्स अनलिमिटेड, बट कंसेप्ट अनलिमिटेड। वही कंसेप्ट को अलग अलग तरीके से, अब जलेबी ऐसे बना के घुमाओ या ऐसे बना के घुमाओ, जलेबी तो जलेबी बनी, वही चीज है, वो ही चीज है यहाँ पे। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स ओनली ट्रिकी, डेटा मैनिपुलेशन। बट इफ यू हैव द पावर ऑफ कंसेप्ट विद यू, नथिंग। 10 मार्क का क्वेश्चन है बॉस कॉस्ट शीट पे, 10 मार्क का क्वेश्चन। आपने कितनी देर में बना लिया अभी कॉस्ट शीट? 14-15 में। देखो आपको कितना टाइम लगा। और यहां तो कुछ कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ दिया है आपको। एडमिन ओवरहेड्स आर 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, सारा डेटा इतना बढ़िया अरेंज करके दिया है। 30 जून 18, 30 सितंबर 18, 3 महीने की कॉस्ट शीट बनाना है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, यू सी। लेकिन पता है बच्चा कॉस्ट शीट बनाएगा और कहेगा 10 में से 10 मिलेंगे। मैं कह रहा हूं नहीं, 10 में से 6 मिलेंगे। पता है क्यों? ये जो आंसर्स दिए ना, ये आंसर्स ऐसे होने चाहिए। कल आपका एक होमवर्क क्वेश्चन था नंबर 6, सबने उसमें लेजर अकाउंट बनाएंगे, पर पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में नीचे क्या पूछा था कि व्हाट आर दीज आंसर्स। आप पूरा करके आते हो, लेकिन अगर आपने उतना छोड़ दिया ना, मार्क्स कटेंगे आपके। मतलब आपसे एक्सपेक्टेड पता है यहाँ क्या है? कॉस्ट शीट बनाओ, ये 1 2 3 4 5 लिखो और उसके आगे उसका स्पेसिफिक फिगर लिखो, आंसर लिखो। यू कांट से हाँ वैल्यूअर को इतना नहीं समझता है। अरे यार, उसको समझता है नहीं समझता है, आपको उसे इवैल्यूएट नहीं करना है, उसको आपको इवैल्यूएट करना है।
इतना करके आओ, 0.5 मार्क्स भी कोई नहीं काट सकता, पूरे 10 नहीं मिले ना नाम चेंज कर देना मेरा, वैसे मत करना पर बता रहा हूं। क्वेश्चन 2B 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं। A manufacturing company is producing a product A which is sold in the market at 45 per unit. The company has a capacity to produce 40,000 units. The budget is for 30,000 units. The cost is given to you. Margin of safety आपको दिया गया है. You are required to calculate fixed cost and break even point. कौन सा टॉपिक है? Marginal cost. ये देखो सेकेंड क्वेश्चन, डिजायर्ड सेल्स कैलकुलेट करना है हमें, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, लेकिन यहां पूछा है वॉल्यूम ऑफ सेल्स। सेम क्वेश्चन हमने किया था, जब वॉल्यूम पूछता है मतलब क्वांटिटी, क्वांटिटी को डिवाइड करता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, आसानी से मिल जाएगा ना। ये देखो पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमें दिया है। उसके बाद इफ मैनेजमेंट इज विलिंग टू इन्वेस्ट ₹10 लाख विद एन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 20%, कैलकुलेट यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न दिस प्रॉफिट। 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है। अरे यार सीधा सीधा कहो ना, डिजायर्ड प्रॉफिट 2 लाख रुपीज है, कैसे आया 2 लाख? 10 लाख का 20%। तो आपको पूछा है डिजायर्ड सेल इफ डिजायर्ड प्रॉफिट इज 2 लाख, लेकिन ये 2 लाख फिगर डायरेक्ट ना देके उन्होंने इसमें एफएम ऐड कर दिया कि इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 20। अब बच्चा कंफ्यूज, अरे क्या कंफ्यूजन है? यू हैव टू थिंक इट। Management expects additional sale if the selling price is reduced to 44. Calculate the units to be sold to achieve the same profit as desired in 3 above. आप देख लो यार, कॉलमनर फॉर्मेट में कर लो ना, 3-4 कॉलम बना लो, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन 3A 10 मार्क का क्वेश्चन है। ओवरहेड टॉपिक हमने देखा था, उस पे सेम ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है। XYZ Limited has obtained the order to supply 48,000 bearings per year from a concern. On a steady basis, it is estimated it is cost 0.2 as inventory holding cost and setup cost is 384. एक कंसेप्ट देखा था, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी EBQ, उसका क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन वही है, कंप्यूट द ऑप्टिमम रन साइज एंड नंबर ऑफ रन्स फॉर बेयरिंग मैन्युफैक्चर, कंप्यूट द इंटरवल बिटवीन 2 consecutive runs, number of days divided by number of runs, number of batches, number of runs. And how you'll get number of batches, number of runs? Total production divided by EBQ, that's all. You see 3B 10 mark question है। आप देखिए यहाँ पे एक चैप्टर हमने देखा था ओवरहेड अंडर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जहां हमने एक्टिविटी ड्राइवर्स देखे थे। ये देखिए आपको दिया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4A, कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग, रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, FG कंट्रोल अकाउंट और GLA, 4 अकाउंट 10 मार्क का क्वेश्चन। कैन यू बिलीव इट? सिर्फ 4 अकाउंट्स बनाओ और 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अरे यार 3-4 क्वेश्चन में आराम से पास हो जाओगे आप। अब पास का नहीं सोचना है, थिंक अबाउट स्कोरिंग। लास्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, इंटरमीडिएट में 50% इज पासिंग, डू यू एग्री? आपको पता है 60% इज रैंक, 60-65 पे रैंक होता है। लेके आऊंगा मैं एनालिसिस आपके लिए पिछले अटेम्प्ट्स का। लास्ट रैंकर, मैं फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लास्ट रैंकर। इंटरमीडिएट में 50 रैंक्स अवार्ड होती है ऑल ओवर इंडिया, 50th रैंकर का स्कोर लेके आऊंगा मैं आपके लिए लास्ट लेक्चर। और लास्ट रैंकर 65 पे होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको चढ़ा रहा हूं या कुछ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं आपके साथ। 50 तो लानी है ना बॉस, अगर पास होना है तो 50 तो लानी है। और अगर ऐसा पेपर रहा तो 60 नहीं मिल सकता आराम से? टेल मी यस और नो। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं, अपने दिल पे हाथ रख के खुद को जवाब दो, मुझे नहीं, खुद को जवाब दो। हो सकता है इसमें से 10 मार्क का आपको नहीं आता हो, बाकी तो सब आता होगा। तो 50 पे जब पास होते हैं, 60 पे जब एग्जामिशन आता है, 65 पे रैंक आ रही है ना, 65 पे रैंक ला सकते हो आप। इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, रैंक के लिए एलिजिबल कौन है? जो बोथ ग्रुप देता है वो। सिंगल ग्रुप पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर रैंक। चांस तो लेके देख सकते हैं।
ऐसे एक एक क्वेश्चन से ही मार्क्स जमा होंगे। देखो आगे क्या है, सर्विस कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्ट बस, पैसेंजर फेयर आपको कैलकुलेट करना है यहां पर। बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट मतलब क्या होता है, क्विकली बताओ मेरे को फॉर्मूला। क्वांटिटी टू बी सोल्ड, बजटेड सेल्स, एड क्लोजिंग स्टॉक। चार लाइंस आपको बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, पर्टिकुलर जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 लाइंस खत्म, 5 मार्क मिल गए। उसके बाद परचेज बजट इन यूनिट्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, खत्म। परचेज बजट का, परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर रॉ मटेरियल। देखो तो जरा रॉ मटेरियल यहां कितने टाइप का है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बना रहे हैं वो उनके फिनिश गुड है, एक ही टाइप का रॉ मटेरियल है, खत्म। रॉ मटेरियल का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस डन। नेक्स्ट चेक ऑल ऑफ यू, लेबर टॉपिक पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, कैन यू सी। अब लेबर पे कितने मार्क का क्वेश्चन है, अगर इसे डर भी लग रहा है 5 मार्क का क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूं 125 का पेपर है। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद है ना सभी को, आपके बुक में दिया दोनों वॉल्यूम्स में मैंने, ताकि भूलो ना आप कभी। 125 का पेपर है, उसमें से 100 का सॉल्व करना है। मैं कह रहा हूं वो 100 में से और मानो 10 का नहीं आ रहा है, 90 का तो आएगा, पर 90 का ऐसा सॉल्व करो कि 90 का सॉल्व करके 80 मिल जाए तो मजा है। और मिल सकते हैं, ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो ये मैं घर से नहीं लाया हूं, आपके सामने आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने। ये देखिए, कुछ पढ़ा था हमने ओवरहेड टॉपिक में, चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। वहां हमने 3 मेथड देखी थी। नंबर 1, वेयर नो सर्विस डिपार्टमेंट इज गिविंग सर्विस टू ईच अदर, उसे कहते हैं डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नंबर 2, one service department giving service but another service department is not giving, step ladder method। और तीसरा, both the departments giving service to each other। 2 मेथड देखी थी यहां पे, simultaneous equation method and trial and error method। अब देखो यहां पे कौन सी मेथड है, क्या मेथड है, हमें समझ में आएगा। ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स रेंडर सर्विस टू डिपार्टमेंट ए बी एंड वाई। अब वाई कौन सा है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, whereas Y renders service to only A and B। कौन सा मेथड, स्टेप। कुछ नहीं करना है, बस हो गया। ये बनाना है टेबल और ओवरहेड रिकवरी रेट कैलकुलेट करना है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कितने मार्क का क्वेश्चन देख लो, 5 मार्क का क्वेश्चन। अरे बस जब पढ़ रहे थे तो मुझे पता है आपको डिफिकल्ट लग रहा था, पर मैं जानता हूं क्योंकि मैं इस रास्ते से गुजर चुका हूं और मुझे खुद की टीचिंग पे, खुद पे और आप पे इतना फोकस है कि यस, यू बीन वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड यू हैव अटेंडेड इट रेगुलरली। क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, करेक्ट। मैंने कहा था इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है काफी बार कि सर यू एम्फसाइज टू मच ऑन थ्योरी। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, फॉरगेट अबाउट दैट क्रिटिसिज्म, फॉरगेट अबाउट दैट ट्रोलिंग। एक ही चीज कहूंगा मैं आपसे, अनलेस एंड अंटिल यू स्टडी थ्योरी you can't build your foundation, you can't build your fundamentals। और जब तक फंडामेंटल्स नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मेंशन एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, याद है, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। एक पैराग्राफ दिया है चैप्टर नंबर 1 में, वो पैराग्राफ के समय मैंने आपको मार्क करवाया था, इसे मार्क करके रखना, ये देख लो। एक्सप्लेन ऑब्सोलिसेंसेस एंड सर्कमस्टेंसेस अंडर विच मटेरियल बिकम ऑब्सोलीट एंड स्टेप्स टेकन फॉर इट्स ट्रीटमेंट। अब ये क्वेश्चन पता है, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्सोलिसेंस मतलब खराब होना, आउटडेटेड होना। तो आपको पूछा है एक्सप्लेन ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या होता है, उसके बाद में किन वजह से मटेरियल ऑब्सोलीट हो सकता है, पुअर हैंडलिंग, पुअर मेंटेनेंस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस इन द डिमांड ऑफ द फिनिश गुड, इससे चेंज हो सकता है। और स्टेट द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर इट्स ट्रीटमेंट, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या ले सकते हैं।
अरे यार सिंपल जनरल नॉलेज छाप के आना है, वहां पे 5 मार्क का क्वेश्चन है, 3 तो मिलेंगे। टेल मी यस और नो। कोई कैलकुलेशन है? कुछ नहीं है, सिर्फ कहानी लिख के आनी है, 3 मार्क्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं ब्लफिंग करना है, पिन पॉइंट तो लिख सकते हो बॉस। ये देख लो, अब इसकी तो लिमिट्स है बॉस। स्टेट द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। टेल मी बॉस, ओवरहेड टॉपिक में हमने देखा है बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, एयर कंडीशनिंग कॉस्ट को एरिया, नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स, डू यू एग्री, टाइम कीपिंग, नंबर ऑफ लेबर्स, डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पावर और स्टीम कंजम्पशन, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर्स, इलेक्ट्रिक पावर, मशीन ऑफ, अच्छा ये पावर कंजम्पशन मिलेगा और ये इलेक्ट्रिक पावर, तो वो पावर कंजम्पशन का लाइट पॉइंट्स, एरिया। बॉस ये 6 नंबर क्वेश्चन है पेपर का, इंटरनल ऑप्शन वाला, 5 क्वेश्चन आते हैं ABCDE। ओके दिस इज, हाँ यू हैव टू सॉल्व एनी 4। 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, 25 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें से 4 सॉल्व करना है, कोई भी आपको, अब भी आप कर सकते हो। ये पेपर अभी दूना मैं आपको, मैं गारंटी से कहता हूं आप में से हर कोई बंदा 35-40 तो मिनिमम अभी लेके आएगा, है कि नहीं वो कॉन्फिडेंस? 35-40 का नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस? आप मुझे मत बताओ, खुद सोचो मैक्सिमम भी कितना ला सकते हो, वो आप सोच लो। अब वो जो है ना, वो डिफरेंशियल पढ़ाई आपको करनी है। अगर आज आपका इस पेपर में मैक्सिमम ही आ रहा है सपोज 60, तो ये समझ लेना कि आज से, मतलब बैच खत्म होगा उस दिन से एग्जाम तक आपको पढ़ाई करना है 40 मार्क की। लेकिन एक चीज समझना, ये जो 60 आ रहा है ये आज आ रहा है, तो इसको दिमाग में रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब ग्रुप 2 करोगे तो ग्रुप 1 से दूरी बनती जाएगी, उसकी भी प्लानिंग हम करेंगे अलग। How are byproducts treated in costing? You see the question. हमने पढ़ा था, मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी पढ़ा था और JPBP में भी पढ़ा था, that the sales value of byproduct is credited to process account. याद करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं एक लाइन में आंसर लिख के आना, इसमें एक्सपेक्टेड क्या है? अरे 5 मार्क का क्वेश्चन है बॉस, उसको लिखो पहले, व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट, एक पैराग्राफ फॉर्मेट में या बुलेट पॉइंट फॉर्म में, व्हाट इज अ बाय प्रोडक्ट। फिर बाय प्रोडक्ट को अगर आपको डिस्पोज करना है तो क्या होगा, और बाय प्रोडक्ट को बेचना है तो क्या होगा, डिस्पोज। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एश डिस्पोजल चार्जेस, एश वाज अ बाय प्रोडक्ट। आप लोगों ने कहा था सर वो एक्सपेंस, वो इनकम है, पर वो एक्चुअली क्या था, एक्सपेंस था। कहां डेबिट होता है? प्रोसेस अकाउंट में डेबिट होता है। लेकिन बाय प्रोडक्ट अगर बेचते हो तो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट। बस इतना लिख के आओ, 5 में से 5 मार्क्स। एक्सप्लेन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, चैप्टर नंबर 5। कौन सा चैप्टर छोड़ा है आप? आंसर है कोई नहीं। मटेरियल पे क्वेश्चन है, लेबर पे क्वेश्चन है, ओवरहेड अंडर एब्जॉर्प्शन पे है, चैप्टर नंबर 5 ABC पे है, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट पे है, चैप्टर नंबर 7 कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग पे है, चैप्टर नंबर 8 यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग पे है, चैप्टर नंबर 9 सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे है, चैप्टर नंबर 10 JPBP पे है, चैप्टर नंबर 11 प्रोसेस कॉस्टिंग पे है, चैप्टर नंबर 12 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे है, नंबर 13 मार्जिनल पे है, नंबर 14 स्टैंडर्ड पे है, नंबर 15 बजट सेंटर। एक चैप्टर छोड़ा नहीं है, एक चैप्टर नहीं छोड़ा है, इंक्लूडिंग फर्स्ट चैप्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वाला क्वेश्चन याद कर लेना, नॉट इवन सिंगल चैप्टर दे ले। इससे क्लियर इंडिकेशन है हमने नहीं छोड़ा है, तुम भी मत छोड़ो। करेक्ट? So on this note we'll conclude today's lecture. I told you your homework question is question number 11 and 17. See you in the next lecture. Thank you very much.